So I will start the recordings and Assalamu alaikum all participants. This is our second last session of our course film desk, and in today's session we're going to complete the remaining things which we cannot able to complete in our previous week session. So we were on the discussion of the framing and composition, and we have discussed about the angles, like how we can shoot an appropriate scene to look the viewers about the emotions that are being attached with that particular scene. So उसको किस तरीके से हम shoot कर सकते हैं, उसके shooting angles और उसके camera movement. So this the previous session was a very much important session, and in which we have covered very important things that are very much, you can say, considered an important part to shoot any sort of film, any sort of motion picture. So these all were the things which we have discussed in the previous session, and those who are not there, so kindly check out the recordings, because today we will have our last you can say a session on this slides, because in the last week of the session, like the next week, which will be the last session of flip deck, so we're going to do something else. So kindly review all the recordings so that you can able to complete the home task which will going to be assigned in this session, the last part of this session. Okay. And one more thing, those participants who have not you can say have not participated well in the previous sessions, or you can say in the previous week sessions, and we cannot see their participation in the comment section, or by their, or they have unmute themselves and talk to us. So we will mark these all things, and with this, with the participation, we have also marked your attendance as well. So these all will be included, and then we'll going to you can say give you at last the result, or you can say the report of it. And if the participant is able to submit the, you can say, home task on time, which would be the deadline would be the next week of Friday, मतलब आपको next week Friday को ही जो है वो फ्राइडे तक जो है आपको अपना होम टास्क जो है वो जमा कराना है. सो इफ ही कैन डू सो वेरी गुड, इफ ही कैन नॉट, so we cannot allot them their certificates and the digital badges through email. Okay. And one more thing, if you have any sort of question, any sort of query in the previous week sessions or in today's session as well, so kindly don't feel hesitate and share your query through the comment section, or you can unmute yourself and share your query or feedback or any sort of thing which you want to share related to course. And one more thing, if the participants cannot able to join, so we have the facility of our email id, which is technolightheadofficial365@gmail.com. You can contact there, and we will have a technical team, so they will go to guide you like what are the technical issues that you cannot able to join our sessions. Okay. So now we're going to start the today's session, and the things which we're going to cover in this session would also be very much important, because in this session we're going to describe some more detail and some more, you can say, appropriate things which are, you can say, you have noticed in the films. It is also related to the scenes, like how you can shoot any sort of a scene. And this normally, you can say, the work of a director, and you can also be seen these things in the film, but you don't know कि ये होता actually कैसा है. So we're going to discuss that in today's session. So the participants have joined. We have a huge amount of participation in the session. So let's discuss the first slide. Cut in, cut away, cross out. These three are the terms which have the same meaning. And what is that? To show the object, person of interest, to show something in same time, different place, फ्लैशबैक. तो नॉर्मली ये होता है कि जब आप कभी किसी टीवी सीरीज में, या कभी भी आप किसी जो है वो फिल्म के अंदर जब आप कोई फ्लैशबैक के मोमेंट्स देख रहे होते हैं, या आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पे फोकस किया जाता है फिल्म के अंदर, या किसी भी ऐसी चीज को जो कि लिंक करती है स्टोरी से आगे चलकर. सो इन दैट केस वी विल गोइंग टू डू these shots. The camera angle will going to cover up these thing in the cut in, cut away, or cross out. You can say any of these three terms, ये तीनों एक जैसी है. So the camera will going to be in these movements. Okay. इसके अलावा, if you have to show the thing, the place and the character, these three things in the same frame or in the same composition, so in that case you will have to use these three shots: cut in, cut away, cross out. These three are same, बस नाम different different है. So cut in भी कह सकते हैं, cut away भी कह सकते हैं, and you can say cross out as well.
Okay, so this is actually also a camera angle, you can say. It is also a type of shot technique which is being used to cover up or to show the viewers these things: flashback, character, place, and the that element which is very much important. So these three in the same frame, so उसके लिए ये जो है वो कैमरा टेक्निक्स लगती है. Okay, so let's move towards the next slide. Match cut. What is a match cut? It's a very easy part of the film. Like if you have to see, you have noticed, like to continue the story to achieve poetic effect. अच्छा नॉर्मली होता है कि कभी आपने देखा होगा कि कोई कभी कोई ऐसी चीज होती है फिल्म के अंदर या कोई ऐसी बात होती है तो उसमें बहुत सारा ड्रास्टिक रिएक्शन आता है. मतलब उसमें ड्रास्टिक रिएक्शन से मुराद ये कि उसके ऊपर कोई बहुत ही हॉरेबल सा साउंड आता है, कोई बहुत सस्पेंसफुल साउंड आता है बिहाइंड में बैकग्राउंड के अंदर, एंड द कैमरा इज बी फोकस टू द कैरेक्टर एक्सप्रेशन. सो दिस वुड बी कॉल्ड एज अ मैच कट. उससे ये होता है कि जो भी सिचुएशन के जो अफेक्ट है वो कैरेक्टर कैरेक्टर किस तरह पोर्ट्रे कर रहा है उसके एक्सप्रेशन के थ्रू, तो उसको कैप्चर करने के लिए द डायरेक्टर विल यूज दिस टेक्निक ऑफ मैच कट. उसमें नॉर्मली उसके फेस पे फोकस किया जाता है या उसकी आईज पे किया जाता है या नॉर्मली उसके जो है वो नेक तक एंगल सेट किया जाता है, सो दैट दे कैन मेक that scene clear to the audience, that the emotion, that the like the thing which is being happening in that scene, तो उसको कैरेक्टर के अफेक्ट्स के कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के थ्रू उस चीज को ऑडियंस तक पहुंचा सके. एंड विद ऑल्सो इट कैन बी समटाइम्स के कुछ जो है वो कोई ऐसी कोई लव एंगल जैसी कोई बात हो तो उसके ऊपर भी जो है वो सामने से क्या एक्सप्रेशन आते हैं, सो इन दैट केस दिस ऑल्सो बी यूज्ड. ओके, सिर्फ हॉरेबल या सस्पेंसफुल या एडवेंचरस या कोई हॉरर थ्रिल साइंस फिक्शन इस टाइप की मूवीज में नहीं, रोमांटिक मूवीज के अंदर भी जो यू कैन से ड्रामेटिक मूवीज भी होती है, जो उस मूवीज के अंदर भी नॉर्मली इस चीज को यूज किया जाता है. ओके, सो दिस वाज सेकंड टेक्निक व्हिच इज कॉमनली, इट इज नॉट एक्चुअली कॉमनली यूज्ड, मगर ये भी एक टेक्निक होते हैं जो कि कभी ना कभी आपने नोटिस जरूर की होंगी फिल्म्स के अंदर. Okay, what is a jump cut? The jump cut is another part of a camera angle which is to show passage of time to create urgency. इसका ये होता है कि कभी भी कोई फाइट सीन होता है या कभी भी कोई जो है वो एक आपको लॉन्ग शॉट लेना है जिसमें आपने जो है वो कैरेक्टर्स को शो करना है, एक फाइट सीक्वेंस शो करनी है, या फिर आपने कोई भी इस तरह का सीक्वेंस शो करना है जहाँ पे 4 से 5 कैरेक्टर्स हो और वो कोई पर्टिकुलर आपको प्लेस भी शो करनी है, पर्टिकुलर प्लेस आपको उनकी सराउंडिंग शो करनी है, तो उसमें जो है वो नॉर्मली आप जंप कट का यूज़ इस्तेमाल करते हैं, ताकि उससे जो है वो फ़िल्म की एक ऐसी हुक लाइन बन जाए कि जिससे जो कि नॉर्मली आगे चलकर उस चीज़ को रिलेट कर सके. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नॉर्मली हॉलीवुड की फ़िल्म्स के अंदर यू हैव एक्सपीरियंसेस दीस टाइप ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस और सुपर हीरोज़, मार्वल स्टूडियोज़ ले ले, डीसी स्टूडियोज़ ले ले, तो बहुत सारे इस तरह की स्टूडियोज़ के अंदर जो है यू हैव एक्सपीरियंस दीस थिंग कि कभी-कभी जो है वो फाइट सीक्वेंस शूट करते हैं हीरोज़ के दरमियान, सो दे यूज़ द टेक्निक ऑफ जंप कट. अच्छा, जितनी भी ये टेक्निक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ़ यही नहीं होती, आपको ऐसा भी फ़ील होगा कि यार अभी तो लॉन्ग शॉट था, अभी ये डायरेक्ट फ़ोकस हो चुका है। तो ये टेक्नीक ऐसा नहीं है पूरा सीन ही या पूरा उस वक़्त की हैपनिंग पूरी इसी पर्टिकुलर जो है वो कैमरा एंगल पे शूट की जाती है। नहीं, क्या पता वो एक पूरा एक 15 मिनट का या 12 मिनट का एक सीन है, उसमें जंप कट सिर्फ़ 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए आया हो, बट इट वाज़ देयर। तो ये नहीं है कि यार जो मैं क आपको टेक्नीक्स बता रहा हूँ कैमरा एंगल्स की, तो उसी पे पूरे सीन शुरू हो जाते हैं। नो, उनके हर कैमरा एंगल होता है 4 से 5 जो है या ज़्यादा भी हो सकते हैं, सो दे यूज्ड द cinematographers and DOPs, they used these techniques, और सिर्फ कुछ 5 सेकंड के लिए आएगा या 10 सेकंड के लिए हार्डली आ जाएगा, तो पर होगा ज़रूर उस सीन के अंदर, ताकि उस टाइम की उस सेकंड की पर्टिकुलर जो इमोशन है वो ऑडियंस तक पहुंच सके. ठीक है, तो काफी बारीकियों का नॉर्मली जो है द डायरेक्टर शुड कंसिडर इट, एंड so that the thing which he wants to show to their audience, to portray the thing in front of the audience, तो वो सही तरीके से जो है वो ऑडियंस के सामने पोर्ट्रे हो और उनको सही तरीके से समझ में आए और वो उससे कनेक्ट कर सके. सो इसलिए और सिर्फ इसी चीज़ों की वजह से जो है वो नॉर्मली फिल्म्स को ज़्यादातर लोग जो है वो अप्रिशिएट करते हैं. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड. अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज ये कुछ रेयर चीज़ें हैं. पहले जो हमने लॉन्ग शॉट और ये हमने एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट और कट शॉट, तो ये सब तो नॉर्मली ड्रामों के अंदर भी होते हैं, बट दीज एंड कैमरा एंगल्स यू हैव नॉट एक्सपीरियंस, लाइक आपने रेयरली ही एक्सपीरियंस किया हो तो किया हो, पर आपको पता भी ना हो कि होते क्या थे ये शॉट्स. ओके,
So next part of the thing is like, okay, now we're discussing about the camera transitions, like what are the transition in the cameras. एक सीन से दूसरे सीन की तरफ जब स्विच करते हैं तो बहुत सारी बीच में ट्रांजिशन आती है. सो यू हैव आल्सो एक्सपीरियंस इट इन द वीडियोस एज वेल. नॉर्मली जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनकी वीडियोस के अंदर भी ट्रांजिशन आती है, लाइक ही मूव फ्रॉम वन सीन टू अनदर सीन और फ्रॉम वन क्लिप टू अनदर क्लिप, सो दे ऐड अ ट्रांजिशन. तो ऐसे ही लगता है कि डायरेक्ट एक क्लिप दूसरे क्लिप पे स्विच होगा, नहीं, वो कुछ ट्रांजिशन शो करते हैं. वो उनकी आसान लफ्ज़ों में कहें तो उनकी एक स्क्रीन जब दूसरे स्क्रीन से स्विच करती है तो एक स्लाइड इफ़ेक्ट आता है या बबल इफ़ेक्ट आता है या कोई भी इस तरह के जो वो इफ़ेक्ट ऐड करते हैं 2 क्लिप के बीच में, कि ऐसा हो कि स्क्रीन ऊपर की तरफ खुली है, दूसरा सीन आया है या स्क्रीन जो है वो स्वाइप हुई है लेफ्ट की तरफ तो एक नया क्लिप आया है. तो दीज़ आर एक्चुअली द ट्रांजिशंस व्हिच द नॉर्मली कंटेंट क्रिएटर यूज्ड टू ऐड इन देयर वीडियोस. पर नॉर्मली फिल्म्स की ट्रांजिशन तो डेफिनिटली अपर लेवल की होती है, वो अलग चीज़ होती है उनके अंदर. सो वी गोइंग टू डिस्कस दैट इन द अपकमिंग स्लाइड्स. Okay, so these are the two most commonly used, you can say, camera angles and camera transition in the films. Like first is like wipe pan. What is a wipe pan? Wipe pan is like when the two people are being talking or they are standing in a one frame. So जब कैमरा का जब next shot, जब next scene open होता है, जब next scene आता है, तो जैसे कि एक सीन पर कट होता है तो जब दूसरा सीन ओपन होता है तो दे विल हैव एन इफेक्ट ऑफ वाइप पैन. अब आपको ऑब्वियसली ये वाइप पैन और ये हाइड रिवील जो नेम्स हैं ये ट्रांजिशंस के नेम्स हैं. जैसे कि फेड आउट, फेड इन, so these are normally the names of the transition. So ये जब आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा तभी आप लोगों को समझ में आएगी कि ये होती क्या है. बट कुछ कुछ अगर लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कुछ अगर टिकटॉक वीडियोस भी बनाते हैं, कुछ शॉर्ट्स भी बनाते हैं, आर इफ दे आर बीइंग रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएटिंग, सो दे कैन नो विच व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, के ये चीजें उनको पता होंगी, ये वाइप पैन, फेड इन, फेड आउट और स्लाइड एल, स्लाइड आर. तो ये इस तरह की जो ट्रांजिशन होती है ये नॉर्मली फिल्म्स के अंदर भी होती है. हाइड रिवील इज एक्चुअली वेरी कॉमन, कि जब भी कभी किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना होता है सो दे यूज टू फर्स्ट हाइड दैट एनी पार्ट ऑफ देयर, नॉर्मली फेसेस हाइड करते हैं एंड देन स्लोली बाय स्लोली द कैमरा विल मूव टुवर्ड्स अपवर्ड, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, और दे और समटाइम द कैमरा विल केम फ्रॉम अपर टू द लोअर पार्ट ऑफ द कैरेक्टर. तो इससे ये होता है कि पूरा कैरेक्टर पोर्ट्रे हो जाता है आराम से. और नॉर्मली जब कभी कभी भी किसी हीरो की या कभी भी किसी जो है लीड कैरेक्टर की जो कोई एंटागोनिस्ट हो या कोई प्रोटैगनिस्ट हो फिल्म का, तो उसको जब ओपनिंग करनी होती है सिनेमा स्क्रीन के ऊपर, सो दे यूज दीज टाइप ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट्स सो दैट द ऑडियंस विल मेंटेन अ हुक टुवर्ड्स इट एंड देन दे विसल आउट, और फिर वो उस पे एक लाउड रिएक्शन शो करें. ओके, so the camera transitions are also being important to portray the thing which you want to portray. Normally ये भी डायरेक्टर्स का ही जो है वो काम होता है. Then you have the other in camera transitions, like यही मैं बात की, object block, distraction, push in, pull out, sky wipe. So ये सब transitions के नाम है. ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये अलग-अलग तरीके की जो है वो ट्रांज़िशन होती है, कि एक एक क्लिप से जब आप दूसरी क्लिप पे बढ़ते हैं, तो बीच में एक जो है वो गैप आता है. तो डायरेक्ट ऐसा ना हो ना कि मैंने अभी बात करते-करते नेक्स्ट क्लिप लगी है, तो डायरेक्ट मेरा जो है वो नेक्स्ट क्लिप लग गई, नहीं. बीच में या तो वो नेक्स्ट क्लिप जो है वो स्लाइड होकर आ रही होगी या वो नेक्स्ट क्लिप जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिवील होगी. पहले वो पूरी ब्लर होगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता उसको जो है वो दे इट वुड बी क्लियर फॉर द ऑडियंस. या फिर इट कैन बी पुल इन, पुल आउट का मतलब ये होता है कि वो एक तरह से फेड इन हो, पहले वाइट स्क्रीन हो, वाइट होते फिर वो पोर्ट्रे हो स्क्रीन पर. आई होप द थिंग व्हिच आई वाज ट्राई टू एक्सप्लेन यू, आपको चीज समझ में आ रही होगी, बट आई गेस कि कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आ रही होगी बिकॉज दे हैव नॉट एक्सपीरियंस दीस थिंग. नहीं है, लोगों को नहीं पता होता कि ट्रांजिशंस क्या होती है. नॉर्मली दिस एक्चुअली मेक्स द सीन, मेक्स योर कंटेंट, मेक्स योर फिल्म more beautiful, more you can say अट्रैक्टफुल, एंड द ऑडियंस विल गेट गेट टू नो कि आप एक्चुअली दिखाना क्या चाह रहे हैं. सो कहने का मकसद ये है कि छोटी छोटी चीजें भी कैमरे की टेक्निक्स हो, चाहे वो शॉर्ट एंगल्स हो, चाहे वो डायरेक्टर की क्रिएटिविटी हो, तो वो छोटी छोटी चीजें भी जो है वो फिल्म के इमोशंस को और फिल्म का जो कहानी का जो मेन एंगल है ऑडियंस तक पहुंचाने में काम आती है. ना सिर्फ डायलॉग्स, ना सिर्फ म्यूजिक, ना सिर्फ एक्टिंग, ये सब काम नहीं करता. कुछ टेक्निकल जो है वो क्रिएटिविटी भी लानी पड़ती है सो दैट जो चीज आप दिखाना चाह रहे हो इट वुड बी क्लियरली पोर्ट्रे ऑन द सिनेमा screens. Okay, I hope the thing is clear to you all, and so that we can move toward the next slide. But I'm going to stop here, and I want you to write any sort of text in the comment box or unmute yourself and show your participation if you have any sort of question. So definitely ask me, or if you don't have any sort of questions, so uh, say understood, acknowledge. So write these type of text so that I can know कि आप
आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है एंड यू आर लिसनिंग टू मी. ओके, सो आई हैव रिसीव्ड 2 messages. Acknowledge. Okay. काइंडली अदर स्टूडेंट ऑल्सो रिप्लाई मी. ओके, नोटेड नोटेड. सो आई एम हैप्पी कि आज ज़्यादा ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो है वो एक्टिव है. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर पार्टिसिपेशन. ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. साउंड. अच्छा भाई, एक फ़िल्म, जहाँ तक एक फ़िल्म की जो है वो स्क्रिप्ट की बात करें, चाहे आप फ़िल्म के टेक्निकल एरियाज़ से बात करें, उसकी सीन्स के बारे में बात करें, उसके कॉस्ट्यूम के बारे में बात करें, उसके मेकअप के बारे में बात करें, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट अबव दीज़ ऑल, यू कैन से, इसको जो सबसे ऊपर रखूँगा, इज़ साउंड, म्यूज़िक. अगर फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर या फ़िल्म का जो है वो साउंड, म्यूजिक, उसके गाने अगर वो एप्रोप्रिएट नहीं होंगे, फिल्म से रिलेटेड नहीं होंगे, सो definitely it will not embark the audience and it will not leave that expression which a filmmaker wants to leave. So you have to choose a very appropriate sound for your film and very appropriate background score, theme. You have to choose it very clearly. सही है. नॉर्मली साउंड्स की वजह से जो है लोगों को कभी कभी गाने पसंद नहीं आते, कभी कभी लोगों को बैकग्राउंड स्कोर पसंद नहीं आता. जैसे आसान लफ्जों में समझाता हूँ तो if there's an entry sequence of an hero and he was coming from a helicopter or he was coming from a jeep, तो इस तरीके का अगर कोई सीक्वेंस उसको शूट कर रहे हैं, so there was a heavy music, you can say suspense music or any sort of sound which was played behind the as you can say music बजा background में, okay, for their entry. So that music, that sound would actually उसका 50% पार्ट होता है फॉर पोर्ट्रेइंग द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ यू. गाने के हिसाब से ही आप जज कर सकते हैं कि हो क्या रहा है. कभी साउंड तो ऐसा इंपॉर्टेंट है कि कभी ये हॉरर फिल्म्स के अंदर आप देखते हैं स्केरी साउंड आ रहा है, कोई सस्पेंसफुल साउंड आ रहा है, सो यू विल नो के कुछ खतरनाक होने वाला है, कुछ स्केरी होने वाला है आगे. So sound plays a very important part in your films, in your, you can say, in your TV series, or you can say web series, serials, हर जगह पर sound का ही बहुत important part होता है. So let's discuss about the detailed things about the sounds. Okay, there are three type of things: dialogues, background score, and foley sound. So these three are the areas where the sound is being used very much, you can say appropriately, and बहुत commonly use किया जाता है sound. So first is like dialogues. अच्छा, डायलॉग्स में यहाँ पर दो तरह के यहाँ पे साउंड होते हैं, एक साइलेंसिंग साउंड और एक डबिंग साउंड. अच्छा, नॉर्मली जो एक तो यहाँ पे आपको पहली में नजर आ रहा होगा, दिस वाज अ क्लियर साउंड, जो कि आप जब मेन जब आप सीन शूट करवा रहे होते हैं, एंड नॉर्मली जो है वो टेक्निकल टीम जो है, देयर वाज अ लाइट मैन, देयर इज अ, यू कैन से माइक मैन, देयर इज अ लाइट मैन, माइक मैन, स्पॉट बॉय, ये सब क्रू के अंदर आते हैं. सो वन ऑफ द पर्सन अमंग द क्रू मेंबर्स हैव होल्ड द माइक लाइक दिस, जहाँ आपको इमेज में नजर आ रहा होगा, इस तरह जो है वो माइक जो है वो मतलब कैरी करता है, एंड देन दैट माइक विल गोइंग टू कैप्चर द साउंड, ईच एंड एवरी साउंड ऑफ द सीन. तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को डायलॉग्स जो है वो सुनने को मिलते हैं अपनी जो है वो फिल्म्स के अंदर, क्योंकि जाहिर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्स होते हैं, दे विल गोइंग टू यू कैन से कि वो एक एक चीज को वो कैप्चर करते हैं, एक साउंड को जो है वो, जो भी हैपनिंग हो रही होती है उस पर्टिकुलर सीन के अंदर, तो वो उस चीज को जो है वो कैप्चर करते हैं विद द डायलॉग्स, विद द बैकग्राउंड स्कोर एज वेल. एक तो ये साउंड हो गया. दूसरा साउंड होता है डबिंग. व्हाट वुड बी द डबिंग? अच्छा, जब फिल्म जो है वो कंप्लीट हो जाती है, so when the film is on the editing table and now the post production and the pre production people are working on it, so उस टाइम पे जो है वो makers are used to performing their duty, so वहां पर जो है डबिंग होती है. समटाइम्स जो है वो कभी कभी जो है वो कुछ ऐसे सीन्स भी होते हैं जो कि कैरेक्टर एक्चुअली, जो एक्टर होता है पर्टिकुलर, वो उस टाइम पर उस सीन को नहीं कर रहा होता, he was just लिपसिंग, और he was just you can say follow up the sound which is coming from the background, और वो उसे अपने होठ ला रहा होता है, तो that would be the part of dubbing. डबिंग होती है, डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, they used to dub the particular part of the scene, the story, the film, and then the actor will going to perform it. सबसे बड़ा important part डबिंग का कहाँ आता है? Normally songs में आता है. Like the songs are being shooted in the studios, in the song, in the music booths. So वहां पर जो है वो normally and singer used to sing the song for the film, and then the actor will go to you can say lips it out, and just dub that song in its own voice. वो अपने own voice में dub करता है और वो सिर्फ स्क्रीन के आगे जो है वो अपने होठ लाता है, but not originally singing.
सही है। वो एक्चुअली गाने जो है नॉर्मली कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर पे जो है पिक्चराइज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले लें, कोई भी हमारा पाकिस्तानी सिंगर है लाइक आतिफ असलम और अली जफर और एनी सॉर्ट ऑफ म्यूजिशियन, दे यूज्ड टू प्ले, दे यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। तो नॉर्मली जो है वो सॉन्ग जो है वो नॉर्मली फिल्म्स के अंदर भी वर्क करते हैं, और वो अपने गाए हुए गाने जो है वो किसी भी एक्टर पे पिक्चराइज करते हैं। लाइक आतिफ असलम का गाया हुआ गाना फलानी फिल्म के अंदर जो है वो फलाने हीरो पे पिक्चराइज हुआ, उसने उस गाने पर जो है वो एक्ट किया, डांस किया, लिपसिंग की। So that would be actually a part of dubbing and ओरिजिनली द पार्ट ऑफ साउंड। तो इस तरह होता है साउंड का नॉर्मली फिल्म के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन साउंड की फिल्म के अंदर नॉर्मली। तो इसलिए कह रहा था मैं, साउंड्स के बगैर द फिल्म इज इनकम्प्लीट। ओके, नेक्स्ट वी हैव बैकग्राउंड स्कोर। व्हाट वुड बी द बैकग्राउंड स्कोर? तो इसमें कुछ यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, लेट्स डिस्कस इट आउट। लाइक द बैकग्राउंड स्कोर इज फॉर लाइक कॉम्प्लीमेंट द मूड इमोशन। डेफिनेटली वही बात मैंने की, जो उस वक्त की हैपनिंग हो रही है, अगर कोई ब्रेकअप सीक्वेंस शूट हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई पेनफुल बैकग्राउंड स्कोर आएगा, अगर कोई स्कैरी चीज हो रही है तो ऑब्वियसली कोई हॉरर साउंड आएगा बैकग्राउंड पर, अगर कोई कोई सस्पेंस हो रहा है या कोई ऐसी सस्पेंसफुल चीज हो रही है, सीक्वेंस शूट हो रहा है, so definitely the music would be depend on that scene, on that particular scene. If the scene was actually it's related to any mystery, so कोई सस्पेंसफुल जो है वो बैकग्राउंड स्कोर होगा। तो उस पर्टिकुलर सीन की इमोशंस, उनकी पर्टिकुलर सीन का जो मूड होता है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए द साउंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो दैट द acting of that particular character, the acting of the actor, it would be, you can say, combined with the background sound, and then the whole scene would be portrayed in front of the audience, और वो कंप्लीट तरीके से जो अच्छी तरीके से जो पोर्ट्रे होता है, और वो फिर जो चीज समझाना चाह रहे होते हैं उस सीन के थ्रू, वो चीज लोगों को समझ में आ भी रही होती है। सेकंड इज फोर शेडो इवेंट्स। ऑब्वियसली ये वही बात है, किसी पुराने पास्ट इवेंट को देख ले कोई, यू कैन से कोई पुराना अगर फ्लैशबैक में स्टोरी चल रही है, तो उस टाइम पर कोई फ्लैशबैक में हुआ हुआ कोई भी जो है वो सीन, जो कि आने वाली मूवी के अंदर जो है वो आगे पार्ट के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा। सो डेफिनेटली द साउंड इज बीइंग वेरी मच इंपॉर्टेंट देयर एज वेल। कन्वे हिडन मीनिंग्स। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, एक एक्टर है, उसने अपनी लाइंस बोली, सीन्स खत्म कर दिया और वो फ्रेम से आउट हो गया, एंड द कैमरा इज नाउ बीइंग फोकस टू एनी सॉर्ट ऑफ एलिमेंट, किसी भी प्रॉप पर जो है वो उसे फोकस्ड हुआ है, और वहां पर पीछे से एक अजीब सा साउंड आया है। चाहे वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले ले, कोई अगर कोई यू कैन साइंस फिक्शन मूवीज है, उसके अंदर अगर कोई मैजिकल जो है वो स्पेल, कोई मैजिकल स्पेल जो है वो बोला जा रहा है, या कोई ऐसी बुक है, कोई यू कैन से रिचुअल करने के लिए, इवल रिचुअल्स की जो है कोई बुक है, तो वहां पर एक कैरेक्टर होगा, ही वाज रिसाइटिंग द इविल वर्सेस, एंड देन द कैमरा वुड बी फोकस्ड ऑन हिज एलिमेंट्स। वहां पर उसने जो है, जो भी उनके प्रॉप्स होंगे, जो भी उस सीन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है उन्होंने प्लेस किए होंगे, जो है वो यू कैन से वो क्या होते हैं, लोकेशन टीम कह सकते हैं, या उस सेट डिजाइनर्स जो है नॉर्मली वो उस सीन के अकॉर्डिंग उस प्रॉप्स को यूज करते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज पर कैमरे का फोकस्ड होना, तो हमें ये ऑब्वियसली लगता है कि यार ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है और ये आगे फिल्म में काम आएगी, या ये कुछ इंपॉर्टेंट है। सो उस टाइम पर जो बैकग्राउंड में जो स्कोर होता है, बैकग्राउंड साउंड जो प्ले होता है, सो दैट वुड बी एक्चुअली कन्वे द हिडन मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, फिल द गैप्स इन कन्वर्सेशन। अब आपके दो लोग खड़े हैं फॉर एग्जांपल एक सीन में, अब उन्होंने, एक ने जो है वो अपनी लाइंस बोली, कुछ क्वेश्चन किया, ठीक है ना। अब ऐसा क्वेश्चन है जो कि यू कैन से बहुत ही ज्यादा जो है वो, जो जिसका आंसर बहुत ज्यादा वियर्ड है, एंड द नेक्स्ट द ऑपोजिट पर्सन इज टेकिंग टाइम, और वो पॉज ले रहा है और वो जो है उसको आंसर करने के लिए। सो उस टाइम पे जो उसके दरमियान जो साउंड बचता है, या उसके दरमियान जो साउंड जो इंसर्ट किया जाता है, सो दैट वुड बी एक्चुअली फिल द गैप्स इन द कन्वर्सेशन। किसी किस्म का साउंड भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आई लव यू बोला, आप सामने वाला जो बंदा है या बंदी है, सो शी वाज, और ही और शी वाज टेकिंग टाइम टू रिप्लाई, तो उसके बीच में कोई, चाहे वो अगर वो सरप्राइज हो गई है उसके क्वेश्चन से, उसकी बातों से, तो ऑब्वियसली कोई सरप्राइजफुल साउंड बीच में आएगा। या ऐसा भी आ सकता है कि जो सवाल वो सामने वाला चाह रहा हो पूछना, और उसके सामने ऑपोजिट बंदे ने वही सवाल पूछ लिया है, so he was or she was happy कि उसने मेरे दिल की बात जान ली। So in that case, another sort of background score or background sound would be played to fill the gap between the conversation. तो इस तरीके से जो है वो साउंड जो बीच में आते हैं, तो वो अलग पार्ट होता है बैकग्राउंड स्कोर का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग,
कन्वे पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्वियसली कोई ट्रांजिशन होती है, कोई अगर कोई शहर दिखा रहे हैं, कोई इलाका दिखा रहे हैं, कोई गली दिखा रहे हैं, कोई भी लोकेशन को जो है वो शो कर रहे हैं। इट कैन बी आइदर अ कॉमेडी सेट, आइदर इट वुड बी अ हॉरर कैसल, आइदर इट वुड बी एनी सॉर्ट ऑफ होम, हाउस, कुछ भी हो सकता है, कोई बैंगलोर हो सकता है। तो उस टाइम पर जो पीछे बैकग्राउंड में जो टून सी बजती है, वी कैन से इट एज़ अ बैकग्राउंड स्कोर। तो बैकग्राउंड स्कोर जो बजता है, दैट वुड बी एक्चुअली कन्वे द पैसेज ऑफ टाइम। और यहाँ पर ऐसा भी होता है कभी-कभी कि अ, आपने देखा होगा मूवीज़ में आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 10 इयर्स, तो इस तरह जब वो ट्रांज़िशन होती है कि यार 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो उसके दरमियान जो साउंड आती है, उसके दरमियान बैकग्राउंड स्कोर आता है, दैट वुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ द साउंड दैट इज़ यूज्ड टू कन्वे द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, उस टाइम पर आपने नोटिस किया होगा कोई ऐसा टून नहीं बजती, वो ऐसा ही कुछ बैकग्राउंड स्कोर होता है जो कि टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा हो कि वक़्त बदल गया, 10 साल बाद क्या हुआ है, तो वो इस तरह साउंड की ओपनिंग होती होगी कि कोई 10 साल बाद कुछ नया देखने को मिल रहा है। जब इस क्लिप सेकंड क्लिप जब आपके सामने आता होगा कि 10 साल बाद का जब क्लिप आता होगा आपके सामने, सो यू विल ऑब्वियसली एक्सपीरियंस दैट थिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ उस गाने की वजह से। वरना सीधा-सीधा लिख दें कि एक सीन हो रहा है, वो एक बंदा मर गया, अब 10 साल बाद ये उसका बेटा खड़ा है सामने, वो उसका बदला लेने के लिए उसकी मौत का। तो नॉर्मली जो है वो इस तरह नहीं होता, जब तक आप जो है वो बैकग्राउंड स्कोर नहीं देंगे तब तक आपको जो है वो मज़ा नहीं आएगा। लाइक वो एक चीज़, एक गैप रहता है, वो फ़िल नहीं होता। जब तक आप जो है वो अ, उसको प्रॉपर्ली उस सीन को शूट करें, उसके कैमरा एंगल्स ठीक हो, उसके शॉट्स ठीक हो, उसका जो सीन्स को प्रॉपर्ली शूट किया गया हो, एंड सेकंडली द बैकग्राउंड स्कोर वुड बी सूटेबल फॉर दैट सिचुएशन, तभी जो है वो आपको वो चीज़ अट्रैक्ट लगती है, कहती है हाँ यार ये बड़ा अच्छा हुआ है। ओके, साइलेंस एज साउंड। किसी सीन में बिल्कुल खामोशी है, तो पीछे हल्का-सा एक साइलेंस साउंड बजेगा, ठीक है? जैसे टू, 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 इस तरह जो है वो लाइक बहुत ही बारीक-सा साउंड होगा, दैट वुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट द साइलेंस कि किसी कैरेक्टर के दरमियान जो है वो ऑकवर्ड साइलेंस है, या कुछ भी ऐसी सीक्वेंस शूट हो रहा है कि स्टोरी में कि कैरेक्टर जो है वो खामोश हो गया है। ही वाज़ साइलेंट, इट वाज़ ऑकवर्ड साइलेंस। तो उस टाइम पे जो बैकग्राउंड स्कोर होता है, दैट वुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट द साइलेंस व्हिच वुड बी कंसिडर्ड एज़ अ साउंड। ओके, सो यहाँ पर ये बैकग्राउंड स्कोर किन किन एरियाज में काम आता है, जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड एरियाज हैं, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन दिस स्लाइड। ओके, किसी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी पार्ट के अंदर बैकग्राउंड स्कोर किया पीछे कहीं पर भी, सो यू कैन कमेंट मी और क्यूरी एंड यू कैन आस्क मी। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि शायद एक बार में ना समझ में आए, बिकॉज हर बंदे की मेंटल लेवल अलग होता है। सम स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द थिंग वंस, और सम टाइम आई हैव टू रिपीट इट। सो कोई ऐसा मसला नहीं है, रिपीट करने से जो पहले जिसको समझ में आ गया उसको और पक्का समझ में आ जाएगा। आपको तो आया ही आएगा और उस बंदे को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। फॉली साउंड, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। व्हाट इज़ द फॉली साउंड? आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी कभी जो है एक सीन आप देख रहे हैं, अब कोई भी सीन होता है, चाहे वो एक्शन सीक्वेंस शूट हो रहा है, चाहे वो रोमांटिक सीक्वेंस शूट हो रहा है, चाहे इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ फाइट, चाहे कार रेसिंग है, कुछ भी है। उस पर्टिकुलर सीन के अंदर 2 एक्टर्स के डायलॉग्स के साउंड के अलावा बैकग्राउंड सॉन्ग आता है, जो भी बैकग्राउंड स्कोर है, जो भी चल रहा है बैकग्राउंड में गाना। और तीसरी चीज़, एक और चीज़ भी होती है। द एलिमेंट्स व्हिच हैव बीन प्लेस्ड इन दैट सीन, तो उनकी आवाज भी होती है। दरवाजा खुला है, कोई कमरे में आया है, अब दरवाजे के साउंड की आवाज भी ऑब्वियसली उसके अंदर होगी। आपने ग्लास तोड़ा है, ठीक है, कोई ऐसा सीक्वेंस चल रहा है कि उसमें कोई ग्लास टूटता है या कोई दरवाजा टूटा है, तो उस दरवाजे का ब्रोकिंग साउंड भी आता है। तो एक ये हो गया। इसके अलावा अगर आपने कोई गन फायर किया है, तो ऑब्वियसली उस गन की जो है वॉइस जो होगी, नॉइज होगी, वो भी जो है वो उस सीक्वेंस का पार्ट होगी। सो दीज टाइप ऑफ audios, these type of sound which normally came from the elements which are being placed in that scene. It can be either any sort of action weapon, it can be either any sort of a domestic material like fans, doors, lockers, drawers, or you can say uh, any sort of थिंग जो भी साउंड करती हो, चाहे मतलब कुछ भी टक की आवाज हो, चाहे आप कोई भी चीज स्विंग कर रहे हो तो एक सॉफ्ट सी वॉइस हो, जो भी आवाज होगी वो उस सीन का पार्ट होगी, और उसको हम कहते हैं फॉली साउंड। ओके, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को जो है ना, अच्छा, कभी अब आउटडोर सीक्वेंस शूट हो रहा है, तो वहाँ पर जो ऑब्वियसली
पब्लिक होती है बाहर, तो अब ऐसा तो नहीं होता ना कि क्योंकि ज़ाहिर है एडवांस्ड माइक यूज़ करते हैं, अब मतलब कि एआई यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो हेवी लोडेड किस्म के जो माइक्स होते हैं, तो वो ऑडियंस की, पब्लिक की पूरी तरीके से बातें तो कवर अप नहीं करते हैं, मगर एक ऐसा एहसास लगा के रखते हैं उस सीन के अंदर कि लोग भी हैं और लोगों का शोर भी है। कभी नॉर्मली मार्केट सीक्वेंसेस शूट करते हैं ना, लोग मार्केट के अंदर होते हैं, सीन शूट हो रहा है, कोई पब्लिक प्लेस है, कोई पार्क है, तो पीछे पब्लिक की नॉइज़ भी हल्की-हल्की होती है, सो दैट इट कैन शो दैट द सीन वाज़ रियल एंड इट वाज़ एक्चुअली शूटिंग इट। तो ये और ज़्यादा उस सीन की खूबसूरती को बढ़ा देता है और ज़्यादा लोगों को वो चीज़ समझ में आने लगती है कि भाई है। वरना बाद में अगर इस तरह की चीज़ों को आप इग्नोर कर देंगे, तो बाद में क्रिटिक्स, मेकर्स और जो नॉर्मली मैगज़ीन आर्टिकल्स वाले होते हैं, वो फिर इस छोटी-छोटी चीज़ों को निकालते हैं कि पब्लिक है बैठे हुए हैं, पार्क का सीन शूट हो रहा है और लोगों की आवाज़ ही नहीं आ रही, लोग है ही नहीं। ना लोगों की आवाज़ आ रही है, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, ना बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, ना ट्रीज़ की ब्रीजिंग की आवाज़ आ रही है, ना विंड की आवाज़ आ रही है, ना एयर की आवाज़, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही। तो ये कैसा पब्लिक सीन शूट हो रहा है? So you have to be very much focused, you have to be very much planned, you have a very structured, you can say things, line up होनी चाहिए कि भाई इस scene के लिए ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, we need to check the all recording and your all the check boxes are should be ticked for shooting that scene। ना सिर्फ पब्लिक प्लेस में, मेरे घर के अंदर भी जब आप आते हैं तो ये पंखे का साउंड होता है, या बेड पे जब बैठते हैं तो उसका एक साउंड होता है, तो वो हर एक साउंड को जो है वो, किसी के फुट स्टेप्स का साउंड होता है, तो वो एक एक चीज का जो है वो साउंड आपको सीन में मेंशन करना है। ओके, with the noise of, with the sound of dialogues of the characters and the background score also। ओके, सो आई होप ये भी आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये भी एक अलग कहानी है, इसकी भी एक अलग पार्ट है, ये भी एक तरह से हर एक सीन का, हर एक फ़िल्म का। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड। एडिटिंग वर्कफ़्लो। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली एक फ़िल्म के बनने के बाद ये लास्ट स्टेज पे जो चीज़ें करते हैं, नॉर्मली एडिटिंग टेबल पे जब फ़िल्म आती है, पूरी फ़िल्म शूट हो चुकी है, नाउ इट वुड बी ऑन अ एडिटिंग फ़ेज़, सो व्हाट वुड बी दैट पार्ट के एडिटिंग के टाइम पर क्या-क्या चीज़ें जो है वो करते हैं नॉर्मली एडिटर। सबसे पहले रफ कट, नॉर्मली सीक्वेंसिंग, कोई भी चीज़, जैसे कि अब एक सीन हो गया है, अब डायरेक्टर ने बोल दिया कट, सही है ना? अब ऑब्वियसली कट का साउंड आया होगा माइक के अंदर। तो इस तरीके से छोटी-छोटी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि सीन में एड अप है और ऑब्वियसली वो ऑडियंस को शो नहीं करनी, सो उसे बोलते हैं रफ कट, जो कि एक तरह से रफ पार्ट होता है उस सीन का, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, सो दैट यू डोंट हैव टू शो इट और यू डोंट हैव टू मेक दैट थिंग गो अलोंग द फिल्म, तो इसलिए उसको एक रफ कट के थ्रू जो है वहां पर उसे काट देते हैं। फाइन कट, अच्छा, इसमें नॉर्मली होता है कि कभी-कभी आपने पूरी फ़िल्म शूट कर ली, अब कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, कि यार ये सीन ना खराब लग रहा है, यार ये सीन जो है वो नॉर्मली ये सीक्वेंस जो है, या फाइट सीक्वेंस, या ये पार्ट फ़िल्म का जो है वो वेस्ट है, इससे जो है वो कभी-कभी ऐसा होता है कैरेक्टर की जो इमेज कम हो जाती है, या एक कैरेक्टर है वो लार्जर दैन लाइफ आप उसको दिखा रहे हैं, आप उसको बहुत बड़ा दिखा रहे हैं, एंड दैट पर्टिकुलर सीन विल मेक हिज कैरेक्टर, विल मेक हिज इमेज डैमेज, उसका रोल खराब हो रहा है, लोगों को सही तरह से तरीके से उसकी इमेज नहीं जा रही, तो आप उस टाइम पर उस शॉट को सेलेक्ट करके यू कैन ट्रिम दैट आउट, और आप उसको जो है वो फाइन कट यूज करके आप उसको जो है वो काट सकते हो, उस सीक्वेंस को, उस शॉट को, उस डायलॉग को। ओके, पिक्चर लुक फिनिशिंग, ऑब्वियसली कहीं किसी किसी ऐसी एरिया पे जहाँ आपको लगे कि यार यहाँ पर जो है वो इस सीन में लाइटिंग कम थी, या इस सीन में जो है वो हीरो सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, या इस सीन में जो है वो द कैरेक्टर्स आर नॉट बीइंग रिफ्लेक्टिंग वेल, तो वहां पर आप जो है वो पिक्चर लुक के थ्रू आप वहां पर उस चीज को तो काट सकते हैं, या एडिटिंग से उस चीज की लाइट या फिर उस चीज को और ज्यादा विजिबल कर सकते हैं। ऑडियो पोस्ट, ऑब्वियसली साउंड डिजाइन, साउंड मिक्सिंग, नॉर्मली कहीं कहीं पर जो है ऑडियो को जो है वो रिमिक्स करना पड़ता है किसी किसी पार्ट के ऊपर जाकर, और वहां पर ऑडियो और जो विजुअल साउंड होता है उसको साथ में मिलाने के लिए यू हैव टू शो दैट द विजुअल एंड द ऑडियो इज बीइंग कंट्रास्टिंग विद ईच अदर, तो उस टाइम पर कहीं कहीं पे ऑडियो को रिमिक्स करना पड़ता है, ऑडियो को बढ़ाना पड़ता है, पतला करना पड़ता है, यू हैव टू मेक इट स्क्वीज इट, और यू हैव टू कट दैट ऑडियो, और कहीं कहीं पे जो है जो साउंड लगता है कि यार ये अननेसेसरी लग रहा है, तो वहां पर उस साउंड को काट देते हैं। So these are things which used in the under the heading of audio post। विजुअल इफेक्ट्स देने पड़ते हैं, कहीं कहीं पे जो है वो
यू कैन से विजुअल इफेक्ट पे क्या आता है। कोई अगर बॉम्ब ब्लास्ट का सीन है, कोई अगर ऐसा कोई सीन है, तो ऑब्वियसली वहां पर जो है वो फायर जो है वो फायर ब्लेजिंग होगी। और वहां पर एक तरह से अलग ही जो है वो पूरा सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जाएगी, तो उसको विजुअल इफेक्ट्स भी कहते हैं। एंड समटाइम्स विजुअल इफेक्ट्स आर आल्सो बीइंग मेड थ्रू ऑन कंप्यूटर बाय यूजिंग ग्रीन स्क्रीन। अच्छा, ये ग्रीन स्क्रीन और वीएफएक्स का जो एक अलग जो है वो स्टेज है, तो इसको मैं जरा ना कोर्स के एंड में, हमारा कोर्स का पार्ट नहीं था ये वीएफएक्स और ये सब चीजें, तो एनिमेशन वीएफएक्स, तो दिस वाज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ आवर कोर्स, मगर मैं फिर भी आप लोगों को इस सेशन के एंड में उसका एक छोटा सा रिकैप जरूर दूंगा कि लोगों को पता चल सके कि यार आजकल जो ट्रेंड चल रहा है फिल्म्स का हॉलीवुड में और इनफैक्ट बॉलीवुड में और कहीं कहीं पे तो पाकिस्तानी फिल्म सिनेमास भी इस चीज को कॉपी कर रहा है, इसको फॉलो अप कर रहा है। तो जो है वो क्या होती है एक्चुअली ये चीज़ें, तो उसको डिस्कस करेंगे एंड सेशन के अंदर। कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग, डेफिनिटली कहीं पे कलर अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे सनसेट हो रहा है एंड व्हेन द सन इज सेटिंग, तो वहाँ पर हर चीज़ ऑरेंज ऑरेंज सी हो जाती है। वहाँ पर अगर क्लाउडी मौसम है तो हर चीज़ ब्लू ब्लू सी हो जाती है। अगर वहाँ पर कोई डस्टी मौसम है या वेदर जो है काफ़ी डस्टी है या रेनी वेदर है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर अलग ही कलर कलर हो जाता है। सो उस कलर को कैरेक्टर के साथ कंट्रास्ट करने के लिए यू हैव टू मेक द कैरेक्टर विद द सेम कलर। कलर इफेक्ट आपको देना पड़ेगा जो कि सिचुएशन और जो थीम के अकॉर्डिंग मैच कर रहा हो। तो ये भी जो है वो एडिटिंग टेबल के ऊपर जाकर ही जो है वो होता है। इसके अलावा सब टाइटल्स, क्रेडिट्स एंड ग्राफिक्स, ऑब्वियसली ये एंड का सीन है जब प्रमोशंस में फिल्म जाती है, जब प्रमोशंस होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके, तो ऑब्वियसली सब टाइटल्स एड अप करते हैं फिल्म के अंदर। और इसके अलावा क्रेडिट्स देते हैं कि अगर कहीं पे आपने किसी प्रोडक्शन हाउस को जो है अपने पैनल पे लिया है या आप किसी जगह पर आप गए हो शूट करने के लिए, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर लोकेशन लोकेशन के आप क्रेडिट्स देंगे। किस तरह देंगे आप क्रेडिट्स, उसको फिल्म में मेंशन करेंगे कि यार ये लोकेशन फलानी जगह पे शूट हुई थी, और उसके क्रेडिट दे देंगे आप, ठीक है, उनको अपनी फिल्म में उनका नाम मेंशन करके उस पर्टिकुलर जगह का या किसी भी एरिया का जिसको आपने अपनी फिल्म में यूज किया है। ग्राफिक्स, डेफिनेटली ग्राफिक्स तो यही होती है ना कि आपको फ़िल्म की जो है वो क्वालिटी पे वर्क करना है, आपको फ़िल्म की ऑडियो की जो एमपी3 फॉर्मेट में ऑडियो होती है, यू हैव टू मेक इट क्लियर, यू हैव टू मेक इट एप्रोप्रिएट, और द ग्राफिक्स शुड बी अप टू द मार्क, the quality, the you can say the visual which would be seen by the audience, by the 300 to 400 audience in the in the darkness of the cinema, तो उस टाइम पर एक एक पर्टिकुलर चीज, एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट क्लियरली जो है वो वाजे हो, तो the graphics are being also the part of the editing workflow. ओके, सो यहाँ पर ये चीजें थी जो कि मैं डिस्कस की आप लोगों से कि नॉर्मली एडिटिंग के टाइम पर क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है। अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि नहीं भी है, तो मतलब वो भी मतलब एक्चुअली पार्ट होता है एडिटिंग का, बट आई हैव नॉट मेंशन इट बिकॉज द मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस्ड, और जो बहुत रेयरली नहीं है, जो मतलब हर फिल्म में नॉर्मली होती है, तो वो मैंने यहाँ पे चीज़ मेंशन की है। ओके, सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी, सो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। Okay, last part of our course, film desk, the last slide. Enhance your craft, would be the practice. अच्छा, अब आप एक अब ये कुछ मोटिवेशनल बातें हैं। यहाँ पर सेशन एंड हो चुका है, यहाँ पर सेशन खत्म हो चुका है। जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, जितनी भी द इंफॉर्मेशन which is actually suitable for a filmmaker to know when he was shooting any sort of film, or if he or she would be a content creator, so he can use this information as well in his content, in his if he was shooting any sort of comedy sketches or any sort of video, so he or she can also be know कि यार इन चीज़ों को हम अपनी वीडियो से भी यूज कर सकते हैं, ना सिर्फ फिल्म्स, ना सिर्फ सीरीज या सीरियल्स के अंदर, we can use it in our videos as well. इसके अलावा I have discussed each and every part of the thing, from costume to makeup, from audio to video, from technicalities to the कास्ट एंड क्रू मेंबर, सो एक एक चीज को डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन वुड बी लाइक, इफ यू रियली वांट टू बी अ फिल्म मेकर, इफ यू रियली वांट टू बी समवन के आप कुछ बनाना चाहते हैं, यू वांट टू परस्यू दिस थिंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ, सो डेफिनेटली यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस थिंग बाय वाचिंग मूवीज। मूवीज देखा करें, अगर आपको इस चीज़ में रियली बहुत शौक है, तो उसको ना सिर्फ मूवी को एंटरटेनमेंट के तौर पर देखा करें, बल्कि दिखा करें यार ये शूट किस तरह हुई है, हाउ द सीन्स आर बीइंग शूटेड, और उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ को किस तरह से जो है पोर्ट्रे किया है। मार्वल्स की तरह वो फ़िल्म्स हैं हॉलीवुड की, वो किस तरीके से बनाते हैं, वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी लेवल आप चेक किया करें वहाँ पर। तो इस तरीके से आपको आइडिया होगा कि यार ये फ़िल्म्स किस तरह बना रहे हैं, ओके? और डेफ़िनिटली उनकी जो चीज़ें होंगी ना फ़िल्म के जो उन्होंने यूज़ की होगी, डेफ़िनिटली मैंने इस कोर्स में ज़रूर कवर अप की होगी।
कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो बाहर से उन्होंने कोई की हो। की भी होगी तो डेफ़िनेटली वो अभी आप लोगों के लेवल्स की नहीं है, अभी आप लोग एक फ़िल्म मेकर्स हैं, आप लोग एक बहुत बड़े डायरेक्टर्स या आप लोग कोई बहुत बड़े जो है वो यू हैव नॉट बीन सो मच एक्सपीरियंस। तो आप अभी जी के लिए जो आपकी एज के अकॉर्डिंग जो चीज़ है वो मैंने डिस्कस कर दी है, जो कि आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि जब आप इस फील्ड में आए तो। वरना हॉलीवुड तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें यूज़ करता है, वो तो स्टंट्स भी करते हैं वो लोग तो, और ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके वीएफएक्स यूज़ करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को वीएफएक्स बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा नॉर्मली जो आप सीन्स देखते हैं कुछ ऐसे एंगल्स कुछ ऐसी जो है आप देखते हैं सीक्वेंसेस which are not being originally performed by the character. वो उस एक्टर ने परफॉर्म नहीं किया होता है, ही हैव जस्ट रिएक्टेड, ही जस्ट शेयर हिज इमोशन, इज एक्सप्रेशन। अब एक जगह पे उसको खड़ा किया हुआ है एक एक्टर को, उसके पीछे जो है ना ग्रीन स्क्रीन लगा है। ग्रीन स्क्रीन क्या होती है? ग्रीन स्क्रीन नॉर्मली फोटो स्टूडियोज के अंदर भी होती है। नॉर्मली आप जब आप कोई फोटो खिंचवाने जाते हैं, पिक्चर्स खिंचवाने जाते हैं तो स्टूडियोज में भी होती है ग्रीन स्क्रीन, और नॉर्मली उस पर जो ये होता है कि जो चीज़ आप चाहें आप उस ग्रीन स्क्रीन पोर्ट्रे कर सकते हैं। अब एक पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है, पूरी ग्रीन कलर की स्क्रीन है, उससे बंदा खड़ा है एंड ही वाज एंड अ डायरेक्टर आस्क हिम कि वो इस तरह एक्सप्रेशंस दे के वो एक खाई में खड़ा है, मतलब एक पहाड़ की पीक पे खड़ा है माउंटेन की। सो वो ऑब्वियसली एक्सप्रेशंस देगा और उसके पीछे क्या होगा? पहाड़ लगा देंगे। तो इस तरह होता है कि वीएफएक्स के एक बाइक राइडिंग हो रही है, एक पुलिस चेज़ हो रहा है, एक पुलिस भाग रही है और वहाँ पे जो है वो रॉबर्स भाग रहे हैं। तो नॉर्मली जो है वो अगर आप देखते हैं कि यार ये तो अच्छा भागते-भागते रॉबर की जो कार है या पुलिस की कार जो है वो खाई से गिर जाती है, वो माउंटेन से नीचे गिर जाती है, या फिर वो फायर में जल जाती है। यानी कि मतलब ही वाज़ उसकी जो है कार में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वो फट जाती है। तो नॉर्मली ओरिजिनली उसको नहीं फाड़ते वो लोग, सही है? वो कभी-कभी जो है वो इस चीज़ के लिए ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं और वो जो है उस चीज़ को वो ग्रीन स्क्रीन पर शूट करते हैं, कंप्यूटर में फ़िल्म शूट होती है वो चीज़, वो सिर्फ़ एक्सप्रेशंस देते हैं उनके कैरेक्टर्स। एक और एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे कि बहुत सारे इस तरह मिशन इम्पॉसिबल फ़िल्म है, बहुत सारी इस तरह की फ़िल्म है जहाँ पर जो है वो हेलीकॉप्टर पे बंदे खड़े होकर आ जाते हैं, एरोप्लेन्स के विंग्स पर बंदे खड़े हुए वो एक्टर्स खड़े हो जाते हैं। नॉर्मली जो है वो बड़े-बड़े माउंटेन्स पर जो है वो बाइक राइड करते हैं, और अभी रिसेंटली बहुत सारी फ़िल्म ऐसी आई है हॉलीवुड के अंदर ही, बॉलीवुड के अंदर भी, जो कि रिलेटेबल है इस वीएफएक्स के पार्ट से। लाइक आप देखते होंगे कि क्या ले सकते हैं एग्जांपल हाँ, इतनी बड़ी एग्जांपल ये है कि जब हॉलीवुड में फ़िल्म्स बनती हैं, जैसे शार्क पे बहुत सारी फ़िल्म बनी हुई है, तो वो शार्क ओरिजिनली नहीं होती। वो शार्क ओरिजिनली कैरेक्टर्स को नहीं खाती, हीरोज़ को, एक्टर्स को। वो वीएफएक्स होता है। वो एक तरह से एक मॉडल होता है शार्क का, और उसको कंप्यूटर के थ्रू जो है वो उसको बनाया जाता है, और वो जो भी रिएक्शन देती है, आइदर इट वाज़ स्विमिंग इन द ओशंस और आइदर द शार्क इज बीइंग ईटन द कैरेक्टर्स, तो वो सब जो है वो कंप्यूटर पे वो इस तरह विजुअल सेट करते हैं और एक्टर सिर्फ उसी में रिएक्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं वीएफएक्स, और ये बहुत ही बेसिक बताया मैंने आप लोगों को, इससे बहुत एडवांस लेवल में जा चुका है। मगर आप सिर्फ इसका सिर्फ हाउ नो रखें, आप सिर्फ इसकी जो है वो यू कैन से इंट्रोडक्शन ही तक रखें, बेसिक चीज आप समझ के रखें कि वीएफएक्स होता क्या है। जब आप कोई कोई पूछे आपसे तो यू हैव द आंसर ऑफ इट, है ये। बाय द उसके अलावा तो भाई फिर बहुत सारी और भी एनिमेशन आ जाती है, 3D एनिमेशन और 2D एनिमेशन, तो वो अभी सब कुछ इसका पार्ट नहीं है, सही है। तो यहाँ पर एक चीज़ रह गई है कि अगर आपको एक फ़िल्म बनानी है, आपको एक पिक्चर बनानी है, तो ऑब्वियसली मूवीज़ देखा करें, किताबें पढ़ा करें, बुक्स रीड किया करें, सो दैट यू कैन नो यू कैन योर माइंड वुड बी मोर यू कैन से ब्रॉड हो, ताकि आपके और इमेजिनेशन स्ट्रांग हो, क्रिएटिविटी वेल स्टेबल हो, एंड यू कैन easily make, और यू कैन मेक अ स्टोरी, और यू कैन नो कि स्टोरी किस तरह बनती है, राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, और पूरा एक तरह से क्लाइमेक्स तो इस तरह होता है। फिल्म शूट करना मुश्किल है, पर फिल्म की स्क्रिप्ट बनाना, फिल्म की कहानी लिखना और भी ज़्यादा मुश्किल है। कहानी खराब होती है चाहे जितनी भी बड़ा डायरेक्टर क्यों ना हो जाए, वो जितने अच्छी तरीके से उसको फिल्म को शूट कर ले, नहीं पहुँचती लोगों तक, नहीं लोगों को मज़ा आता। कहानी सही नहीं होती, लोगों को पसंद पसंद नहीं आती। सो द स्टोरी शुड आल्सो बी अप टू द मार्क, उसके लिए आप किताबें पढ़ें, आप लोग जो है वो अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करें, मूवीज़ देखें, उसको लिखा करें आप मूवीज़, अपनी स्टोरीज़ को प्रैक्टिस किया करें नॉर्मली, स्टोरीज़ लिखने की, के कैरेक्टर्स बनाया करें, लोकेशन सेट किया करें, फर्ज़ी लोकेशंस, और उसके बाद पूरी तरीके से एक तरह से एक स्टोरी लिखा करें, स्टोरी राइटिंग स्ट्रॉन्ग करें अपनी। फिर उसको जो है ऑब्वियसली शूट करने के लिए आपको उस स्टोरी को सीन्स में डिवाइड करना होगा, डायलॉग्स बनाने पड़ेंगे, डायलॉग्स, और फिर वो पूरा जो भी आगे प्रोसेस होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट द वर्क ऑफ शॉर्ट फिल्म, आप उसको फिर बनाना शुरू कर दें।
Here you have ended the session of flip desk, और अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर होम टास्क डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। और उससे पहले इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, जब तक मैं होम टास्क आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन क्यूरी, आप लोग जो है वो रिव्यू करें पीछे की चीज़ें, और रिकॉल करें माइंड में, और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है तब तक आप पूछ सकते हैं अपने इस कमेंट सेक्शन के थ्रू। ओके, so home task is like it was divided into three sections: part one, part two, part three. The first part is what are the elements that should be considered first for making a short film. यहाँ पर आपको हर वो चीज डिस्कस करनी है, हर वो चीज मेंशन करनी है जो कि एक शॉर्ट फिल्म बनाने से पहले आपको चाहिए होती है। ठीक है? अच्छा, शॉर्ट फिल्म से पहले मतलब इसके अंदर कैमरा, मैं बताया तो थोड़ी हिंट देता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर कैमरा आएंगे और शॉर्ट्स नहीं आएंगे। पहले आप इसमें बताएं, मतलब स्क्रिप्ट बताएं, और आप इसे पीछे की चीजें बताएं कि पहले शॉर्ट फिल्म बनाने से पहले क्या होता है। ठीक है चीजें। पार्ट टू, what role does the backstage people play in a project and which part of the movie they are responsible for? इसमें आपको वो हर डिपार्टमेंट मेंशन करना है, चाहे वो एक कैमरा मैन हो, चाहे वो एक लाइट मैन हो, हर वो इंसान जो कि फिल्म के पर्दे के पीछे काम कर रहा है, चाहे वो लाइटिंग संभाल रहा है, चाहे वो आपकी एडिटिंग संभाल रहा है, हर उस एरिया को आपने यहाँ डिस्कस करना है, एंड इट वुड बी लेंथी आंसर। ओके, पार्ट थ्री, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर एंड हाउ ही प्लान्स टू शॉट अ फिल्म। अच्छा, इसके बाद अब आप लोगों को बता रहा हूँ डायरेक्टर की जॉब। जब फिल्म की हर चीज परफेक्ट बन चुकी है, मतलब एलिमेंट्स अप टू द मार्क है, स्क्रिप्ट वगैरह हर चीज डिसाइडेड, अब फिल्म को शूट करना है। तो अब उसमें डायरेक्टर का क्या रोल आता है, तो आपने वो चीज यहाँ मेंशन करनी है। इसमें सीन्स भी आएंगे, इसमें शॉर्ट्स भी आएंगे, इसमें सीक्वेंसेस भी आएंगे, इसमें हर चीज आएगी। ठीक है? ओके, सो यहाँ पे 3 पार्ट है, तो इसको डेफिनेटली विल गो टू शेयर द डॉक्यूमेंट एज़ वेल। हम एक डॉक्यूमेंट बनाकर भी आप लोगों को ये शेयर करेंगे थ्रू योर ईमेल एड्रेस, थ्रू योर ईमेल आईडी, एंड वी विल आल्सो टू शेयर यू द ऑन व्हाट्सएप एज़ वेल। इफ यू वांट टू शेयर द आंसर एनी ऑफ द फॉर्मेट, यू कैन मेक अ पीडीएफ एज़ वेल, यू कैन शेयर इट इन अ डॉक्यूमेंट फॉर्म एज़ वेल। तो आप उनको यू कैन आइदर शेयर द योर डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल, और यू कैन व्हाट्सएप अस एज वेल। क्योंकि ईमेल में 25 MB तक की जो है वो चीज नहीं आती, तो इसीलिए जो है आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। ओके, so here the session of CyberSafe ended and we have received acknowledged sir, good sir, understood. Okay, so I don't think कि आप लोग कोई भी क्यूरी है, ऑब्वियसली अगर होगी भी आपको क्यूरी, तो आप जो है वो व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो शेयर योर क्यूरी थ्रू ईमेल एज वेल। आप लोगों को आज रात तक जो है यू कैन रिसीव द डॉक्यूमेंट फॉर्म, तो आप उसको जो है वो करना शुरू कर दे। एंड लास्ट सेशन से पहले पहले वी नीड योर होम टास्क। आगे फिर लास्ट सेशन में हम कुछ प्रैक्टिकल, कुछ अलग प्लान करेंगे, कुछ स्पेशल सेशन प्लान करेंगे, तो उसको जो है वो आप उसमें अच्छी तरीके से परफॉर्म करें और उसमें अपनी पार्टिसिपेशन शो करें। ओके, सो हियर वी हैव एंडेड आवर सेशन ऑफ सेकंड लास्ट सेशन ऑफ आवर फ्लिप डेस्क, और बहुत मजे का सेशन रहा। एंड यू गाइज हैव शो वेरी गुड पार्टिसिपेशन, और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भी जो है वो पीछे के तमाम सेशन से पूछे भी थे, और लोगों ने रिकॉर्डिंग्स पर भी, जो हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, टेक्नोलाइटेड हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, तो वहां पर भी जो रिकॉर्डिंग्स हम अपलोड करते हैं, तो वहां पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, स्पेशली फ्रॉम द फ्लिप डेस्क पार्ट ऑफ आर कोर्स। ओके, सो गाइस, पार्टिसिपेशन के लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर जॉइन टुडेज सेशन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, एंड नाउ वी गोइंग टू मीट इन द लास्ट सेशन व्हिच वुड बी ऑन फ्राइडे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, एंड वी गोइंग टू शेयर द रिकॉर्डिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर joining today's session, guys.